myself. My presentation topic is application of pharmaceutical wastewater treatment. Um, First of all, uh, the contents of my presentation are overview of pharmaceutical industries wastewater, effect of pharmaceutical industries wastewater on environment, some parameters for pharmaceutical industries wastewater, treatment technologies of pharmaceutical industries wastewater, and conclusion. First of all, we will discuss about pharmaceutical industries. With the development of pharmaceutical industries, environmental pollution is becoming more and more serious. Due to their chemical synthesis, fermentation plants, formulation plants, natural and biological products extraction. The pharmaceutical industry basically produce cardiovascular agents, antihistamines, steroids, therapeutic nutrients, tablets, topicals, syrups, injectables, sterile manufacturing vitamins, antibiotics, enzymes, etc. We all know that the pharmaceutical typical wastewater treatment plant has four stages: preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, disinfection. But the pharmaceutical industries, in the result of formulation of this type of products, pharmaceutical industries release wastewater with high contamination of organic matter. Therefore, pharmaceutical industries need proper treatment. So, from where does it originate? Pharmaceutical industries wastewater originated by after washing reactor process lines constitute of solvents, active pharmaceutical ingredients, detergents, catalysts, cleaning of reaction vessels, cleaning of shop floors, sewer leakage, accidental spills, unpermitted dumping. Unpermitted dumping includes some metabolites which cannot degrade easily. Environmental effects. The pharmaceutical industry's wastewater affected our environment due to the development of antibiotic resistant microbes. And endocrine disruptors can be disrupt human endocrine system. Recent studies show that pharmaceutical products in water stream can lead to feminization in fishes, and it can be harmful for those who consume these fishes. Diclofenac caused vulture population decline. Pharmaceutical industries wastewater disrupt ecosystem and disrupt biosphere. There are some parameters for pharmaceutical industries wastewater. These are minimum standard discharge limits for pharmaceutical industries wastewater. COD must be 250 mg per liter. BOT must be 10 to 40 mg per liter. Oil and grease 10 mg per liter. Total suspended solids 100 milligram per liter. pH 6 or -6. Mercury 0.01 milligram per liter. Arsenic 0.20 milligram per liter. Chromium, lead and cyanide 0.10 milligram per liter. Phenolics 1.00 milligram per liter. But the lake of pharmaceutical wastewater treatment in Pakistan, wastewater has higher concentration of organic molecules and high concentration of chemicals. There are some treatment methods for pharmaceutical industries wastewater. First is physical treatment, second is chemical treatment, and third is biological treatment. First, we will discuss physical treatment. In physical treatment, we will discuss reverse osmosis process. In reverse osmosis, ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है. इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है और प्रेशर के साथ यहाँ पर जो है वेस्ट वाटर यहाँ से इनलेट किया जाता है, प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया जाता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर यहाँ से क्लीन हो जाता है. सेकेंड प्रोसेस जो हमारे पास है वो फिल्ट्रेशन है. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम कोई भी फिजिकल बैरियर यूज करते हैं, जैसे कि कोई फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, कोई मेटल स्क्रीन यूज की जाती है, फैब्रिक्स यूज किए जा सकते हैं या फिर ग्रैनुलर बीड्स यूज किए जा सकते हैं, जिनके जरिए सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर में से और जो ट्रीटेड वाटर है वो
इस बैरियर के थ्रू पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेस है ये, इसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड को सेटल डाउन होने दिया जाता है और सुपरनेट को सेपरेट कर दिया जाता है। फिजिकल प्रोसेस में नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट मेथड है, वो है ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन। ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन एक फिल्टर लाइक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर्स लगी होती है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर्स लगी होती हैं जिनमें या तो कोकोनट शेल्स होते हैं या फिर कॉल होता है। ये दोनों जो है हाई एंड कार्बन होते हैं। यहाँ से वेस्ट वाटर पास किया जाता है और ये वेस्ट वाटर इस ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर में से फिल्टर होकर नीचे से ड्रेन कर दिया जाता है, जो कि ट्रीटेड वाटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है, वो है फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन के प्रोसेस में एक यूनिट होता है जिसमें मिक्सर्स लगे हुए होते हैं और इस यूनिट को वेस्ट वाटर से फिल कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी फ्लॉक्यूलेंट्स ऐड किए जाते हैं सच एज एलम, या फिर हम कोई नेचुरल फ्लॉक्यूलेंट यूज करते हैं तो वो मोरिंगा ओलिफेरा सीड्स होते हैं। फ्लॉक्यूलेंट्स ऐड करने के बाद 5 मिनट्स का यहाँ पर वेट किया जाता है और ये जो वेस्ट वाटर में जितने भी कंटामिनेशन होती है वो एक लार्ज फ्लॉक्यूलेंट फॉर्म कर देती है और क्लियरिफाइड वाटर को यहाँ से सेपरेट कर देगा। केमिकल ट्रीटमेंट मेथड्स। केमिकल ट्रीटमेंट मेथड में हमारे पास जो पहला ट्रीटमेंट मेथड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर के लिए, वो है आयन एक्सचेंज मेथड। बेसिकली आयन एक्सचेंज मेथड जो है, इस मेथड में आयनिक कंटामिनेशन को रिमूव किया जाता है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें। और सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए भी, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हार्ड वाटर को भी आयन एक्सचेंज मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वो है कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन, इस मेथड में कोई भी कोएगुलेंट ऐड किया जाता है जैसे कि एलम, फेरस सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड। इस प्रोसेस में भी कोएगुलेंट्स ऐड करने के बाद सेटल डाउन होने के लिए यहाँ पर कंटामिनेशन को छोड़ दिया जाता है, कोएगुलेशन ऐड कर दिए जाते हैं, इम्प्यूरिटीज जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देती हैं और सेटल डाउन हो जाती है यहाँ पर, और जो ट्रीटेड वाटर है उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास थर्ड ट्रीटमेंट मेथड है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप की ट्रीटमेंट्स होती हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट और एनारोबिक ट्रीटमेंट। फर्स्ट विल डिस्कस एरोबिक ट्रीटमेंट। एरोबिक ट्रीटमेंट में हमारे पास जो पहली ट्रीटमेंट है वो है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में यहाँ पर एक चैम्बर लगा होता है। इस चैम्बर के अंदर हम वेस्ट वाटर को इनलेट कर देते हैं और यहाँ पर एरिएशन नील लगे होते हैं जिनकी मदद से ऑक्सीजन पास की जा रही होती है और कंटामिनेशन जो है यहाँ पर जो मौजूद होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके साथ कांटेक्ट करते हैं और एक स्लज फॉर्म कर देते हैं, जिस स्लज को बाद में रिमूव कर लिया जाता है। ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है और यहाँ पर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंटामिनेशन को स्लज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यही स्लज हम लैंड फिलिंग में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर यूज में भी यूज की जा सकती है, इंसुलेशन भी कर सकते हैं और कंपोस्टिंग में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, जबकि ट्रीटेड वाटर यहाँ से हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेकेंड जो हमारे पास प्रोसेस है वो है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में एक मेम्ब्रेन फिल्टर लगा होता है। इस प्रोसेस में जो है यहाँ पर एक एरिएशन जोन भी मौजूद होता है। पहले प्री ट्रीटमेंट होती है, प्री ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट वाटर को इस एरिएशन जोन में जो है वो भेजा जाता है। यहाँ पर एयर पास की जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसी तरह से प्रोसेस करते हैं और कंटामिनेशन को स्लज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर स्लज सेपरेट आउट हो जाती है मेम्ब्रेन की वजह से, एफ्लुएंट यहाँ से इजीली पास हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, एरोबिक ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर्स।
इस टाइप के फिल्टर्स में फिक्स बेड्स लगे हुए होते हैं जो कि रॉक के हो सकते हैं, कॉक के, सिरेमिक के या फिर प्लास्टिक मीडिया के बने हुए होते हैं। इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बायोफिल्म ग्रो करती हैं। ये रोटेटिंग आर्म्स लगे होते हैं यहाँ से वेस्ट वाटर को इनलेट किया जाता है, जो कि यहाँ पर आकर इस जो है बायोफिल्म के ऊपर यहाँ पर रिएक्शन होता है। ये रोटेटिंग आर्म्स जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही होती हैं और यहाँ से ट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये जो बेड है बेसिकली ये मीडिया प्रोवाइड कर रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, और ये सारा प्रोसेस भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ट्रीटेड वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एनारोबिक ट्रीटमेंट है। एनारोबिक ट्रीटमेंट एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में होता है। सबसे पहला जो हमारे पास ट्रीटमेंट मेथड है वो है एनारोबिक मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। यहाँ पे भी मेम्ब्रेन होती है जो कि कंटामिनेशन को फिल्टर कर रही होती है, बट ये जो है ये एक क्लोज टाइप चैम्बर होता है जिसमें एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर वेस्ट वाटर को इनलेट किया जाता है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लोज टाइप चैम्बर के अंदर रिएक्शन करते हैं और कंटामिनेशंस को डिग्रेड करते हैं। बट यहाँ पर एक हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि हमें बायोगैस मिल रही होती है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिएक्शन की वजह से यहाँ पर हमें बायोगैस मिल रही होती है और ट्रीटेड वाटर जो है वो फिल्टर मेम्ब्रेन की वजह से इजीली फिल्टर होकर सेपरेट कर लिया जाता है। एनारोबिक ट्रीटमेंट में नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो है फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। यहाँ पर भी एक क्लोज टैंक लाइक चैम्बर होता है जिसके अंदर वेस्ट वाटर को इनलेट कर दिया जाता है, बट यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से स्लज ब्लैंकेट बन रहा होता है। ये स्लज ब्लैंकेट यहाँ पर बन रहा होता है और एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर भी बायोगैस प्रोड्यूस हो रही थी, मीथेन गैस। यहाँ पर एक मेटल डोम लगा होता है जो कि गैस को यहाँ से सेपरेट कर रहा होता है। एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंटामिनेशन के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, स्लज फॉर्म करते हैं, स्लज नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है और यहाँ से ट्रीटेड वाटर को सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट है वो है एनारोबिक सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। एनारोबिक यहाँ पर डाइजेस्टर एड होते हैं, ये बैच रिएक्टर होता है। यहाँ से कंटामिनेटेड वाटर इसमें ऐड किया जाता है, यहाँ पर रोटेटर्स भी लगे हुए होते हैं और वही सेम प्रोसेस होता है कि यहाँ पर एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन के नतीजे में, जो कि यहाँ से गैस होल्डर में सेपरेटेड वाटर यहाँ पर एक टैंक में सेपरेट कर लिया जाता है और स्लज यहाँ पर नीचे से एक अलग टैंक में सेपरेट कर ली जाती है जो कि दूसरे प्रोसेस में यूज की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रीटमेंट मेथड मूविंग बेड बायोफ्लेम रिएक्टर। Anaerobic reactors are employed on a wide scale as their byproduct biogas। यहाँ पर मेरी इस प्रेजेंटेशन का यही कंक्लूजन है कि अगर हम एनएरोबिक ट्रीटमेंट मेथड से हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिग्रेड हो सकती हैं और हमें बायोगैस भी इससे मिलेगी, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली भी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट है। थैंक यू। जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप लोगों में से? एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? जी बेटा, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? नो सर। कोई सवाल? जी बेटा, आप इसको थोड़ा सा बेक कीजिएगा। बस एप्लीकेशन पाकिस्तान। जी जी, अच्छा, आप क्या
आप कैसे कह सकती हैं कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर की जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान में पुअर हैं, या कराची के अंदर जितनी भी जो है एप्लीकेशंस हैं इसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर की, क्या समझती हैं कि आपके वो जो हैं सक्सेसफुली रन कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर? सर, जिस हिसाब से हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जितनी ज़्यादा हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मौजूद है, उतने ज़्यादा हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। उस हिसाब से हमारे पास जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, तो आप और आपने ये लिखा बायोलॉजिकल है 8 ट्रीटमेंट cities have वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी दैट्स टू अप टू प्राइमरी लेवल, यानी कि उनको भी प्राइमरी लेवल पे या प्राइमरी जो है स्टेज पे उसको जो है वो ट्रीटेड किया जाता है, यानी कि वेल ट्रीटेड वो नहीं है। एम आई राइट, मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। अच्छा, और 3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इस्लामाबाद ऑफ विच ओनली 1 इज फंक्शनल, यानी कि उसमें से 2 जो है वो अनफंक्शनल नॉन फंक्शनल है, उनमें कोई फंक्शंस नहीं है, यानी कि वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल है। ठीक है, और कराची हैज ओनली 2 ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ट्रिकलिंग फिल्टर सिर्फ उनके पास मौजूद है, बाकी के जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं की जाती। चलें, गुड, अगर ये आपने अगर डेटा सर्च आउट किया और अगर ये वाकई सही है तो आपने बड़ा अच्छा डेटा सर्च किया, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा कि ये बहुत ज़्यादा लॉस है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इसको अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया फार्मास्यूटिकल को, ये तो क्योंकि इसके मेडिसिन के जो कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं नुकसानदेह होते हैं, और उनका जो है अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ तो अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो आ जाएं। थैंक यू सो मच बेटा, आपने अच्छी प्रेजेंटेशन दी। नेक्स्ट हमजा की प्रेजेंटेशन है। सर हमजा को ऐड बेटा हमजा का ये मसला है, वो मैंने सिर्फ एक बच्चे को रिमूव किया था जो कि अपनी रियल आईडी से नहीं आया था। ठीक है, अब वो हमजा है तो मुझे नहीं पता, मैंने उसको फौरी रिमूव किया था कि वो नाम इस तरह का था, वो फजीलत वाला नाम नहीं था और मैं उसको ऐड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर रियल नाम होता तो मैं किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता, किसी को रिमूव नहीं करता, क्योंकि बाकी तमाम जो बच्चे आए अपने रियल नाम के साथ आए। तो मैं आपको यही क्लास में कहा था कि आप अपने रियल नाम से आए, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा प्रॉब्लम्स होते हैं अगर वो किसी और का, तो हमजा को यही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब वो नहीं आ रहा उसका नाम, मुझे नहीं पता सेटिंग से किस तरह उसको दोबारा वो किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। बेटा मुझे नहीं पता, नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो आ जाए प्लीज।